I was sitting in my office. I just happened to check the temperature. It was 99 something. I immediately wound up my stuff, went back home. और हम दिल्ली वालों का सबको इंकरेज कर रहे हैं कि जो कोरोना से ठीक हुए हैं वो भी सामने आए और अपना प्लाज्मा डोनेट करें। यो गोभी को दवानो बात ऐसी करी। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं ILBS हॉस्पिटल। यहाँ एक प्लाज्मा बैंक बना है और बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं। मतलब जो लोग अपना इलाज नहीं करा पाते उनको प्लाज्मा दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सर्विस नहीं। आप प्लाज्मा डोनर भी आ रखे। तो हम आपकी एक बंदे से अभी इंटरव्यू में बात कराएंगे, वो पूरी डिटेल देगा। चलो अंदर चलते हैं। तो वैसे हम आ चुके हैं प्लाज्मा बैंक। यहाँ सारे प्लाज्मा डोनर बैठे हैं। एक डोनर से इंटरव्यू लेंगे जिनको कोविड हो तो वो अपना पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे। चलो आगे बात करते हैं। तो गाइस अपने साथ एक और सर है। सर आपका नाम क्या है? हरप्रीत सिंह पन्नू, आप कहाँ से हो? दिल्ली से? दिल्ली GK2। अच्छा, आपको कितने टाइम पहले कोविड हुआ था? मतलब क्या क्या सिम्टम आए थे आप? टेम्परेचर 9900 and body ache. बॉडी बहुत ज़्यादा था या नॉर्मल? Body ache was normal, but like any flu. I honestly feel that कब कोरोना हुआ, कब ठीक हुआ, I have no idea. एंड व्हाट्स योर एज? 53. 53। तो आप अपनी जर्नी बताइए कि कैसे कैसे आपको क्या क्या सिम्टम है और कैसे कैसे आपने रिकवरी करी? I was sitting in my office. I just happened to check the temperature. It was 99 something. I immediately wound up my stuff, went back home, took a shower, self-quarantine on the terrace. Luckily, I was lucky enough to have a terrace where I could quarantine myself. And I have senior parents, 89 years father, 85-year-old mother. So I self-quarantined on the terrace. And incidentally, I think I did it on the right time. Neither my staff in the factory, nor my parents, nor anybody at the home got corona. And I started taking, initially doctors thought it is a bacterial infection, not a viral infection. So he gave me antibiotic because I was doing it online. But the temperature would not go down. So I got the COVID test done on the 11th. While I had self-quarantine on the 1st of June. And then it came out positive on the 12th. And then Delhi government intervened. They started calling me, how are you, things like that, what are the procedures and all. They were very nice to help me, except for a few places they were very annoying to call me 4 times from 4 different numbers For your safety. for asking me the same stupid questions. Seems to be. What is your name? What is your address? I said, ask me for my well-being, not for these stupid things. So then the doctor recommended, sir, don't take anything, stop all antibiotics. It is not this thing. Just leave it. So I started having paracetamol in the form of Calpol. Okay. Earlier I was having Dolo. Dolo, yeah. Yes. But then I started having Calpol, and then the temperature subsided, and I think on the 12th day or 15th day, everything was fine. The pain lasted for 3-4 days. I didn't even come to know. It was only through the test that I felt it. I was told I'm positive. But otherwise, there was no pain, no nothing. So people should not be scared of this, I think, at all. Yeah. Except for the age factor, they have to be careful. Rest, all of us have no problem. It's like a common flu coming and going. Yes. So you have taken Dolo and paracetamol, and you have taken the normal diet, not an extraordinary diet. Nothing. I've taken healthy diet, normal diet, nothing. Sleep well, Sleep. I had some problem in the beginning because of the temperature, but I was fine. Slept well, rested well. तो गाइस सबसे बड़ा इशू वही है, डर का। जो लोग डर जाते हैं वो Not at all. I feel Depression में आ जाते हैं। depression में चलते हैं. Depression is another reason for the depression is you're confined to a room with 4 walls. Four walls. That is more. No matter how much Netflix you watch, still you will feel low. Yeah. And people should call it as physical distancing, not social distancing. Yeah. That is the right word for it. Yeah. Because socially we should be talking on the phone, pep up the patients. That's all. जी सर बताइए, हाँ जी सर, मेरा नाम राजू है, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा से है। अच्छा, हरियाणा। हाँ जी कितने टाइम पहले हुआ था आपको? सर, ये 1 महीनों पहले हुआ था। 1 महीने पहले। तो मतलब कैसे सिम्टम आने लगे आपको? सिम्टम तो कुछ नहीं था, पर
फीवर था ओनली, फीवर था, फीवर ओनली था। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जितना एज नहीं क्या आपकी एज? एज हुई है 30 सर, अच्छा 30 है। 30 है। फिर फीवर हुआ फिर उसके बाद मेरा दोस्त है, उसको था, आपसे उसको हो गया? नहीं उसी को था अच्छा पहले। फिर मैंने अपना टेस्ट करवाया, टेस्ट में आ गया फिर। पॉजिटिव? हाँ जी भैया, फिर फिर पॉजिटिव आया। फिर होम सॉल्यूशन रहा मैं, थोड़े दिन रहा, फिर सही हो गया। क्वारंटाइन किया आपने? हाँ जी भैया, हॉस्पिटल नहीं गए? उसको नहीं दिया, ज़्यादा सिम्टम नहीं थे, थोड़े बहुत सिम्टम थे, तो सही हो गया फिर मैं। तो फिर आपने क्या क्या मेडिकेशन ली, क्या क्या डाइट ली जो लोग करना चाहते हैं? ताड़ा वाड़ा लिया सर, तीनों टाइम भरपेट खाना खाया, एक्सरसाइज योगा। हाँ हाँ, एक्सरसाइज योगा, तो मैं अंदर से हेल्थी रहा, फुल अच्छा फीलिंग करे। डाइट लेना बहुत ज़रूरी है गाइस। जो लोग कहते हैं ये मत खाओ वो मत खाओ, डाइट आपको प्रॉपर लेनी है। सबसे और मेन काढ़ा- चीज़ काढ़े डाइट में है। क्या क्या था? ताड़ा तीनों टाइम नहीं, दोनों टाइम सुबह शाम। काढ़ा किससे बनता था, इंग्रेडिएंट क्या था? ताड़ा सर दाल, चीनी, और ये बहुत चीज़ होती है उसमें, दाल चीनी और दूध फूड डालते हैं, और मतलब थोड़ा सा सारी मतलब नेचुरल स्पाइस, तुलसी, नीम, दिलाई सारी चीज़ डालते नहीं, वो वाला। तो उससे आपको 15-20 दिन में आप हाँ बड़े से फिर आपका नेगेटिव है, आपने दोबारा टेस्ट? हाँ जी भैया, और अब आप डोनेट कर रहे हैं? हाँ जी भैया, डोनेट करो। हाँ थैंक यू, वैसे ही आप सपोर्ट करते जी, रहिए। ठीक भैया। तो गाइस हम सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सबको जिनको भी कोरोना हुआ ठीक हो गए हैं, हमें डोनेट करना चाहिए ताकि और लोगों की जान बच पाए। क्यों सर? जो बिल्कुल आपने बेटे। फेस करा आप चाहोगे कोई और फेस ना करे, जल्दी से वो ठीक हो जाए। जी मेरे तीसरे इंसान थे, एक आदमी थे, दूसरे इंसान की जान बच के, तो बात अच्छी और की बात है नहीं सर। मेरी ये आप एक बात बताओ कि समझता हूँ मतलब सांस वांस लेने में दिक्कत है, जो लोग डर रहे हैं वो है उतनी बड़ी प्रॉब्लम है? सर। मुझे महसूस हुआ तो डरने वाली बात तो नहीं थी, शुरू मुझे डर था। एक ही दिन आपको ये पॉजिटिव डर- आई जब, उस टाइम मुझे था डर। फिर उसके बाद में मेरे यार दोस्तों ने था, तो फीलिंग वाली दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा। फिर मैं तो था ही नहीं अंदर, मेरे अंदर, तो सही हो जाए। तो मैं आप फिर फैमिली से भी दूर रहे होगे 15-20 हाँ सर, फैमिली से बिल्कुल पूरा अलग ही रहा, पूरी फैमिली से अलग। वो टाइम काफ़ी डिफिकल्ट होगा। जी, वो पल सोचते नहीं, बहुत फीलिंग होती है, पर क्या करें। तो गाइस बस यही कहना चाहूँगा, अवॉइड ही करो ट्रैवल, जितना हो सके अवॉइड करो और दूर रहो। 6 फुट की दूरी सबसे बनाए जी बिल्कुल, सबसे अच्छे और अगर से आपको दूर हो गया तो पड़े। डरने की कोई बात नहीं है। अच्छी डाइट लेते रहो, मेडिकेशंस करते रहो, जो भी हमने बता रखे हैं पहले, वो लेते रहो, आप ठीक हो जाओगे 15-20 दिन। बस आपको अवॉइड करना है, अगर आपको हो गया तो लोगों से दूर रहना है। थैंक यू सर। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। Thank you. देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे आज ना सिर्फ दिल्ली ना देश पर पूरी दुनिया जूझ रही है। और कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक इलाज नहीं है। और कई मरीज़ ऐसे होते हैं, 1-2% मरीज़ जो बहुत सीरियस हो जाते हैं, और शायद उनको बचाने के लिए पूरी दुनिया भर में प्लाज्मा एक तरह से एक वैक्सीन का काम करती है। तो दिल्ली में यहाँ पे ILBS में दिल्ली सरकार ने पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया है, और हम दिल्ली वालों को सबको इनकरेज कर रहे हैं कि जो कोरोना से ठीक हुए हैं वो भी सामने आए और अपना प्लाज्मा डोनेट करें। मुझे भी कोरोना हुआ था, अब मुझे रिकवरी में, अब मेरी पूरी तरह से रिकवरी हो गई है। रिकवरी के बाद 2 हफ्ते का समय बीत गया है, इसलिए आज मैं यहाँ पे अपना प्लाज्मा डोनेट करने आई हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा मौका बहुत कम बार मिलता है कि हमें किसी की जान बचाने का मौका मिलता है, और इसलिए मैं आज अपना प्लाज्मा देने आई हूँ। और दिल्ली में आज 1 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर हो गए हैं कोरोना से, और मैं उन सबसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप भी सामने आइए, आप भी लोगों की जान बचाइए, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है, जैसा मैंने कहा, उसकी कोई दवा नहीं है। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे आके लोगों की जान बचाएं। आतिश जी, एक चीज़ देखने को मिला है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से 400 के आसपास लोगों ने ही अभी तक प्लाज्मा डोनेट किया। क्या वजह है कि कम नंबर्स की होने से, और क्या कैसे आप लोग सामने क्या कम्युनिकेशन करें? देखिए, उसमें 2 पक्ष हैं। एक तो पक्ष ये है कि कई रीज़न से कई लोग एलिजिबल नहीं होते हैं, मेडिकेशंस की वजह से, बीमारियों की वजह से, कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी हैं। लेकिन दूसरा ये है कि लोगों के मन में थोड़ा डर भी होता है। लोगों के मन में ये डर होता है कि हमें एक बारी कोरोना हो चुका है, ऐसा तो नहीं है कि फिर से हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि वीकनेस हो जाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं, मैं तो खुद
खुद प्लाज्मा डोनेट करने आई हूँ। हमारे साथ हमारे पार्टी के सरकार के कई और कॉलीग्स थे जिन्हें उसी समय हुआ था। आज वो सभी प्लाज्मा डोनेट करने आए हैं और हम सबसे ये आग्रह करने आए हैं कि सामने आइए, किसी की जान बचाइए। खासतौर से आतिशी, इसमें अहम बात ये भी है कि महिलाओं को लेकर नियम बहुत सख्त हैं जो डोनेट कर सकती हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो महिलाएं प्लाज्मा डोनेट कर चुकी हैं उनका भी जो क्राइटेरिया के अंदर आती हैं उनका भी डोनेट करना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल, मैं तो मानती हूँ कि हर व्यक्ति जो एलिजिबल है उसे ज़रूर डोनेट करना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर आते हैं उनको प्लाज्मा ज़रूर डोनेट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम सोचें जब हमारे किसी अपने को कोरोना होता है तो हम प्लाज्मा की तलाश में कहाँ कहाँ नहीं जाते। तो उसी तरह से हमें ये सोचना चाहिए कि आज अगर हम किसी की जान बचा सकते हैं, आज हमें कुछ नहीं करना। प्लाज्मा डोनेट करने से वीकनेस भी नहीं होती, ब्लड डोनेट करने से तो फिर भी होती है। प्लाज्मा डोनेशन से ना कोई वीकनेस होती है। जो आपका प्लाज्मा है वो कुछ ही दिनों में बॉडी फिर से जनरेट भी करती है। तो इसलिए सबको जो भी एलिजिबल है, हम ये सोचें कि अगर कल हमारे परिवार में किसी को कोरोना होता तो हम भी तो चाहते कि अगर प्लाज्मा की ज़रूरत होती तो कोई डोनर सामने आता। यही सोच के हर रिकवर्ड व्यक्ति को ज़रूर अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। आतिशी, अभी क्या स्थिति है प्लाज्मा बैंक की? कितने प्लाज्मा यहाँ पे डोनेट किए जा चुके हैं, बता दीजिए। तकरीबन 400 के करीब डोनर्स अभी यहाँ पे आके शायद अपना प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने बड़े से बड़े स्केल पे हो सके लोग सामने आए और अपना प्लाज्मा डोनेट करें। ठीक है, थैंक यू। तो गाइस, हमारे साथ डॉक्टर मीनू वाजपेयी हैं। आप कुछ टेक्निकल बातें बता रही थी, उनके बारे में आप डिटेल में बता दीजिए। अच्छा, सबसे पहले ना एलिजिबिलिटी, हर कोई पूछता है कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं डोनेट करने के लिए। तो एटलीस्ट है ना रिकवरी, जिसमें आपको लगता है कि आप पूरी तरह रिकवर्ड है, दिस इज नॉट रिगार्डिंग टेस्ट। रिकवरी जिसमें आपको लगता है कि आज मेरे कोई सिम्टम्स नहीं है, उस दिन से 14 डेज के बाद आप एलिजिबल होते हो डोनेट करने के लिए। एक कोविड पॉजिटिव टेस्ट कभी भी आया हुआ होना चाहिए उससे पहले। अगर आपका कभी भी कोविड पॉजिटिव नहीं आया तो आप एलिजिबल नहीं बनते हैं डोनेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एंटीबॉडीज नहीं बन पाएंगे। हाँ, आपको डिजीज ही नहीं हुआ, हम ये नहीं प्रूव कर पा रहे कि आपको कोविड हुआ है, तो फिर हम आपको कन्वलेसेंट कैसे माने? कन्वलेसेंट का मतलब होता है रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीज। और एक और बात थी कि जो घर में जैसे होम क्वारंटाइन कर लिया तो उसमें क्या क्या मेडिकेशंस लिए, क्या क्या प्रिकॉशन लिए? ये वाला एरिया मेरा नहीं है तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगी। क्योंकि मैं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं उस एरिया में बात प्लाज्मा के बारे में? हाँ, प्लाज्मा के बारे में। अब है ना 18 to 60 ईयर्स, 18 to 60 ये 60 ईयर्स की एज के बीच में एलिजिबल होते हैं आप। ठीक है, फीमेल्स हु हैव एवर बीन प्रेग्नेंट, यानी कभी भी आप प्रेग्नेंट रहे हो तो आप इनएलिजिबल हो जाते हो, आप डोनेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप ऑन इंसुलिन डायबिटिक हो तो नहीं कर सकते हो, लेकिन डायबिटीज़ अगर कंट्रोल्ड है ऑन ओरल मेडिकेशन तो आप कर सकते हो। हाइपरटेंशन ऑन ड्रग्स या विदाउट ड्रग्स अगर कंट्रोल्ड है तो आप कर सकते हैं, अगर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद अगर कोई कैंसर सर्वाइवर है तो वो इनएलिजिबल होता है डोनेशन के लिए। उसके अलावा अगर आप एनीमिक हो, आपका हीमोग्लोबिन कम है 12.5 ग्राम % से, तो फिर आप नहीं कर सकते हो डोनेट। ठीक है, और आपका मिनिमम वेट 50 kg होना ज़रूरी है। तो गाइस, इनका एक और प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट स्टेप 1, तो उसके बारे में आप बताएं। प्रोजेक्ट स्टेप 1 इज एन इनिशिएटिव जहाँ पर बहुत सारे वॉलंटियर डॉक्टर्स, more than 7,000 डॉक्टर्स वॉलंटियर टू टेलीमेडिसिन पीपल हु आर इन नीड। वी हैव टेकन ओवर अ लॉट ऑफ स्टेट हेल्पलाइंस एंड नेशनल कोविड हेल्पलाइन नंबर्स, जहाँ पर आप कॉल करेंगे और डॉक्टर आपको कंसल्ट करेंगे फ्रॉम कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स वर्सेज नॉन कोविड रिलेटेड, और आपको मेंटल वेलबींग के लिए भी वहाँ पे कंसल्ट किया जाता है। And उसी स्टेप 1 के अंदर ही सेकंड इनिशिएटिव इज आल्सो दिस प्लाज्मा बैंक, एंड स्टेप 1 इज रियली सपोर्टिंग दैट यू शुड कम फॉरवर्ड एंड डोनेट प्लाज्मा। तो गाइस, हम प्लाज्मा बैंक आए थे ILBS पे। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, 2 लोगों का इंटरव्यू लिया जो प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे, 2 डोनर से, और मैंने फिर डॉक्टर मीनू वाजपेयी जी से बात कराई, प्रोजेक्ट स्टेप 1 के बारे में आपको बताया। तो गाइस, प्लाज्मा डोनेट करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिसको भी अगर कोरोना और वो ठीक हो चुका है तो वो जल्दी से अपना प्लाज्मा डोनेट करें। और आपको एलिजिबिलिटी के लिए मैंने नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, कॉल करके पहले अपनी एलिजिबिलिटी पूछना, फिर आना। ऐसा ना हो आप आ जाओ और फिर जी आप वापस आपका टाइम वेस्ट हो, वो भी नहीं होना चाहिए। आप एलिजिबिलिटी पूछो कि आप एलिजिबल, आपको शुगर और ये सब बीमारी ना हो। और गाइज़, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरे को इनके बारे में पता चला था अपने किसी फ्रेंड से, तो मैंने यहाँ मेल करी, कुछ बात करी मैंने यहाँ के डायरेक्टर साहब से, तो उन्होंने मेरे को परमिशन दी, बहुत कम लोगों को मिली है। तो बस कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये एक अच्छा गुड डीड है। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर जितना हो सके मैक्सिमम
इतना करना कि हर एक प्लाज्मा डोनर तक ये वीडियो पहुंचे और वो डोनेट कर दे और लोग बच पाएँ बस।